अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। कानून की नजर में सभी बराबर हैं, इसीलिए तो मुल्जिम और मुद्दई दोनों को पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। वैसे अवाम का भी कसूर है। जो भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहे ना, लोग कहते हैं कि माली ताउन की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस आपको बर वक्त इंसाफ मुहैया करे तो उसे मौका ही ना दें। वैसे इस मुल्क में हर चीज का रेट आसमान से बातें कर रहा है, तो क्राइम रेट क्यों पीछे रह जाए। आज लेकर चलते हैं आपको एक पुलिस स्टेशन जहां पर बहुत चहल पहल हो रही है। देखते हैं क्या हो रहा है। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਸਐਚਓ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਖੈਰ ਨਾ। ਓਏ ਛੇਤੀ ਆਓ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਏ। हाँ, तो सजा मिली भी आज आपको। क्या जुर्म किया है? मैडम जी, मेरे साहब जी ने कहा कि अंदर तक तफ्तीश कर। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। देखा लॉकअप में थोड़ा सा भी टाइम गुजारना कितना मुश्किल काम है। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਠਹਿਰੋ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਆਹਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। अच्छा, आपको थोड़ा सा एहसास हुआ कि जब आप बेगुनाह लोगों को अंदर लॉकअप में बंद करते तो वो कैसा फील करते? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀਦਾ ਜੀ। ये दोनों वारदाती हैं। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ ਉਹ? ये तो मुझे कोई नफीस से खान साहिबान ਕਿਆ लगा। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੇਰੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰਨਾ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 200 ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਟ ਚ ਕਢਾਉਣਾ। ਉਠੋ ਉਠੋ। ਐਸਐਚਓ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਡ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਹੋਰ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਇੱਧਰ 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 ਇੱਧਰ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। बाहर निकलते साथ ही एसएचओ साहब बिल्कुल बदल गए हैं। ਨਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ। ਬਾਹਰ ਠੰਡੀ ਇੰਨੀ ਮਰੋ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਆਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਠੰਡ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਠੰਡ ਨਾ ਮਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਗਿੱਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ? ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਲੱਗ 'ਚ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਕਢਾ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਐ ਵੇਖ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 50,000 ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੀ पुलिस वाले वाला नहीं है। जी मैडम जी सुनाए। नहीं, मैंने क्या सुनाना है, आप सुनाए। आप बड़े फेमस होते जा रहे हैं, अब तो बिहेव करते होंगे ना, अब तो गलत गलत फैसले नहीं करते सख्त होंगे। लग गई जी हर पासे। पूरे शहर च धुंध ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਦਾ ਜੀ, ਨਾਕੇ ਨੂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ? ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਕਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਸੇਕੇ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਅਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। खुश हो गया। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ। ਓ ਮੇਰੇ ਢੋਲ ਸਿਪਾਹੀਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਣ, अच्छा, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਲੈਣ, ਨਗਦ ਨਗਦ ਹੀ। एसएचओ साहब हंसी मजाक असाइड, इनको किस जुर्म में लेके आया? ਲੱਕੜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਸਭ। ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। ये इनका जुर्म इतना बड़ा नहीं है, इनको जरा जल्दी डिसमिस करें। ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। देखें, जुर्म आपने बहुत बड़ा किया। दरख्त काटना ये एक्चुअली एक जुर्म है। तो लकड़ी कौन सी थी जो काटी थी? लकड़ी लकड़ी पे भी तो डिपेंड करता है वही ना, मैं कुछ कह रहा लकड़ियां हूँ। बहुत नायाब हैं। हो सकता संदल हो। ਭਾਵੇਂ मुझे संदल कर दो प्लीज। अच्छा इतनी ज्यादा सजा ना दें, कोई गाना वाना अच्छा सा सुने और जाने दे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ਥਾਣਾ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਵਾਬ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਟੁਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਵਿੱਚ ये जो आपने लकड़ियां काटी है ना, तो जुर्म है जी। लेकिन ये जो बुरे सुर लगाए ना दोनों ने आपने,
ये उससे भी बड़ा जुर्म। ਓਏ ਜੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਾ SHO साहब हाँ जी। बात सुने, इन्होंने गाना तो अच्छा नहीं सुनाया, इनसे कहें तो थोड़ा सा भांड प्रोग्राम कर दें, वो मोटा सा। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹਿਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵੇਖੋ नहीं पीला क्यों पड़े बताओ ना। ਪਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਵੱਟਾ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ तक और भी लोग बैठे हैं, ਇਹੋ उनसे ਜਿਹਾ भी ਬੰਦਾ बात करो। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਮੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ नहीं उन्हें छोड़ दें प्लीज, मेरी शख्सी जमानत पे छोड़ दें। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜੋ 83,000 ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਜ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ऊपर से आते फोन, ऊपर से आते। ਹਾਂਜੀ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚੋਂ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਉਹ ਦਰੋਈ ਖੁਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਫੜੋ ਫੜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨੇਤਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਫੜੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਠੰਡੀ ਏ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਲੋਤਾ ਮਰੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ ਚੜੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ CNG ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈਪੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ हैप्पी होगा वो पहले, अभी तो तकलीफ में है ना, इसलिए ऐसा है। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਾੜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। किस तरह की वारदात हुई है? ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਟੱਕਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਸਾਂ। ਐ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਸਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲਾਜ਼ਕ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਲਾਜ਼ਕ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂ ਲਾਜ਼ਾ ਕਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸਾਖਨਾ थोड़ी देर हुई, ਹੈ थोड़ी देर हुई। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆ आपके पास तो हर किस्म के लोग आते होंगे ना, पढ़े लिखे, अनपढ़, मुख्तलिफ जबानों के, तो आपको समझ आनी चाहिए ना उसकी ਮੈਡਮ जबान। ਜੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ SHO ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ आप उसका मुद्दा समझे ना क्या है? ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਓਏ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਾਕਾ ਐਂ ਬੈਠਾ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਐਂ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਓਏ ਹੋਏ 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 ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਆਹੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਲਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਆਇਆ ਜੇ ਗੁਰਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਓਏ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਮੈਨੂੰ नहीं पता जी। अच्छा देखें, आप एक बहुत बड़े माफिया पे हाथ डाल सकते हैं। असल में बात यह है कि पूरी दुनिया में ये इलीगल काम है, गुर्दा बेचना खरीदना। सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गुर्दा बेचना और खरीदना बाकायदा सिस्टम है उनका, लीगल है। बाकी तो पूरी दुनिया में ये काम इलीगल। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਓਏ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰ ਜੀ GT ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੌਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚੌਕ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਕਲੀਨੋ ਕਾ ਉਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਓ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੁਣੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਸਰ। इंस्पेक्टर साहब, आए रोज खबरें हम पढ़ते रहते हैं अखबारों में कि बच्चों को वर्गला के ले गए, बड़ों को वर्गला के ले गए, उनकी किडनी निकाल लिया। तो ये बड़ा सीरियस इशू है। और ज्यादातर जो शिकार है ना वो बनते हैं नशे के आदी, वो इसलिए क्योंकि वो नशा करके गिरे पड़े होते हैं, वो उठाते हैं, उनको ले जाते हैं और वहां पे उनको पूरी जिप लगाते हैं और अगले दिन वो छोड़ जाते हैं। और कई बंदों को तो 10-10 दिन बाद पता चलता है हमारा गुर्दा निकल गया। नहीं सवारी नहीं आपको नहीं सब्र हो रहा है, नहीं सब्र हो रहा है। संभालो संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। तोड़ सुटा चूड़ियां, खोल सुटा बाल। ਜਿਵੇਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਕੱਢ ਲਏ ਹੋਰੇ ਬਾਜੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖ ਲਈਏ ਅੱਬੂ जी ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਘਰ ਛੱਡ ਹੀ ਆਉਂਦੇ थानेदार साहब ਹਾਂਜੀ अभी को रो रो के मेरा की हाल हो गया। ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਤੂੰ ਸੱਸੀ ਦਾ ਆਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ और मेरा लवली गवाच गया, लवली गुम गया मेरा। शमसी बैठ के बात करते हैं। ਲਵਲੀ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ लवली गुम हो गया मेरा। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं कहना कि दाखिली और खारजी रास्ते बंद करा दो। ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਵਲੀ ਹੈ लवली ना है जी। ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ उम्र अजे केड़ी उम्र सी, केड़ी उम्र सी ओदी, केड़ी जवान। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ जवान बेटा। ਸੋਹਣਾ
कड़ियल जवान। कोई थरथली पा दे और लवली लबड़ा चाहिए लवली हो लवली गया या किसी ने अगवा कर लिया तावान के लिए आपका पता नहीं बेटा? जब मैंने पता होवे कि किसने अगवा कीता ते मैं थाने की लेना नहीं अभी तक तवान के लिए फोन भी नहीं आया तो मेरे ख्याल से नहीं तो कोई फोन शोन नहीं तानू आया कि भी इन्ने पैसे दे के ते लवली ले जाओ? यही बात मैंने अभी बताई है, आप लोगों का काम पर ध्यान है नहीं। माशाल्लाह, ये लवली दे मामू ने? तो मेरे सब मेरे दोस्त है। मेरा नाम अख्तस जुबैरी है और मैं शमसी साहब का दोस्त हूँ। जी जी। लवली नु आखिरी बारी किथे वेखिया सी तुसी? तेरे किचन किचन च वेख्या कुछ खांदा खांदा ही अगवा हो गया। मैं अंज करके गया किचन च सिगरेट पी रहा है तो मैंने वेख के अंज करके पीछे लुका लिया है। उस डर की वजह से तो लवली नहीं भाग गया कहीं? नहीं मेरे ने तो मोहब्बत ही बहुत पहले सी। किचन च वेखिया सी तुसी? हुण वेखो किते बाथरूम च ना बैठ के पीन दिया होवे। सारी कर दी तलाशी ली है जनाब। अच्छा जी। बड़ा फिक्की दाल वर्गी शक्ल ਤੁਹਾਡੀ मैं करना नहीं लभा। इंस्पेक्टर साहब वो रो के हलकान हो रहे हैं, उनका बेटा घुट गया, आप थोड़ा कोई एक्शन दिखाएं। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ बड़े शौक ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। मेरा शो भी देखता था। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 11 ਵਜੇ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। लवली जहाँ कहीं भी हो, रिपोर्ट टू योर डैड, ही इज सो अपसेट प्लीज। जनाब मैं कलाम कहांगा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ जी। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਵਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੋਲ ਬਈ ਜਲਦੀ ਖੋਲ। ਖੋਲ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। जूते भी नहीं पहन के गया? नहीं पहन के गया नहीं पहन के गया। SHO साहब 15 मिनट के अंदर अंदर लवली मिलना चाहिए हमें। मिनट कटा जबैरी 10 मिनट मिलना चाहिए है। तेरा ख्याल तो साढ़े दुख च शरीक हो रहे हैं। हाँ सबो क्या कहने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 5 ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ। देखे ना आपकी एफिशिएंसी पे उन्हें यकीन नहीं है, बाकी सबको कह रहे हैं कि लवली को ढूंढ के लेके आए। ਲੱਭਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये आपके गम में शरीक नहीं, उसका किडनी निकाली है किसने। और देखिए इंस्पेक्टर साहब कितना चिल होके बैठे हैं, रिलैक्स। शमसी साहब ये बताइए कि लवली शादीशुदा था? ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। मैं ये सोच रही हूँ इतनी देर से कि थाने में आके लोगों का इतना वक्त जाया होता है, आप बात ही नहीं समझ रहे किसी की। जब ਵਾਹ तक ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ये SHO साहब बस खामखा एंजॉय कर रहे हैं आपकी बातों को। आप जरा अपना मसला खुल के बताएं उनको, ताकि आपके लवली को ढूंढने जाए। मैं दस रहा है कि लवली जेड़ा है ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ पूरे पाकिस्तान किसी को लवली नहीं है। वो तो अपना बच्चा प्यारा ही होता है सबको, कैसी बातें कर रहे हैं, आगे बताएं। मैं किचन च गोश्त पे है, मेरी इजाजत तो बगैर उन्हें नहीं खाना। ਤਾਹਰੇ ਜੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। नहीं कच्चा भी खा लेंदा सी। शमसी साहब मुझे लगता है ये कोई आपका पेट शर्ट है। खबरदार उन्हें पेट कह के ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ और ਮੈਨੂੰ औलाद ਦੀ तरह सी। औलाद की तरह सी? ਕੀ ਮਤਲਬ? औलाद नहीं थी आपकी? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ औलाद ही ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗੁਆਚਿਆ। और भाईजान मेरे बिल्ले का नाम है लवली। ਜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਈ। इतना लाड इतना प्यार करता है इससे। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੋਤਬਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੇ ਦੀ ਵੈ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਐ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦਾ ਲੱਭਦਾ। नहीं, वो हम सबके लिए शॉकिंग था, लेकिन लोगों को पेट्स भी प्यारे होते हैं, जानवर है वो। बिना यकीन कर भी कदी खारिश होती ना ਲੱਕ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਲਵਲੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ मुझे पता है, मेरे पास भी 4-5 कैट्स हैं। ਜੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ? ਜਾ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ। किसी का फेवरेट पेट खो जाए ना, उसको वाकई बहुत तकलीफ। दुनिया में बड़े बड़े मशहूर लोग थे जिन्होंने अपने पेट पाले हुए थे और उन्होंने बड़ी चीजें उनके नाम की थी। इसमें माइकल जैक्सन Yes. सबसे सरफहरिस्त। उसने जो चिंपैंजी रखा हुआ था ना, जिस तरह के माइकल जैक्सन कपड़े पहनता था वही वो पहनता था। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ। कल आप 7:30 बजे तक कैसे ढूंढ लेंगे? ਤਾਹਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। SHO साहब वो अपनी गारत का पता करें जो पकड़ने गई हुई डॉक्टर को। जितनी SHO साहब की रफ्तार है तो आप अंदाजा लगा लेना कि वर्कर्स की भी तो उतनी रफ्तार होगी ना। SHO ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਥਾਣਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬੈਰੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਜ਼ਬੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਯਾਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਖਰੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ। आ गया कल्प्रिट। ਇਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜੀ, ਇਧਰ ਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। साहब जी आए औरत है जिन्हें मेरा गुर्दा कटाया है। अच्छा 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 मेरी बात सुने जी, मैं आपको बताती हूँ। जी 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 बताएं। एक शख्स मेरे पास आया, अच्छा उसने आकर बताया कि उसके 4 बच्चे हैं। अच्छा इधर आ एक गुर्दे वालिया इधर आ मेरे कोल ये देख उठ पे आ गया, पैरों में खलो गया। गुर्दा भी ਉਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ ਚ 100 ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਠੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਬਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। गुर्दे वाला मसला हल करें पहले क्योंकि उनको तकलीफ है। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। नहीं मैं तो दोनों के साथ हूँ, लेकिन अर्जेंट मैटर ये है। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਲਾਊ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਰਮਾ जी ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਦੋਗੋਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਐਂ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ। 7 ਲੱਖ ਚ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਾਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਜੀ ਓਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆਇਓ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਹੈਂ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। इन्ना कड्डा जी मेरा गुर्दा, ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ वो तो मैं जुए च हार गई जी। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਥਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ। ਐਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਅਰੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਪਰਦੇਸ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਿਨਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। मैं तो दस है बार तुम मेरा गलत नाम ले रहे हो। अगर लवली नहीं लभेगा तो मैं थाने चो उदम मचावांगा। तू याद नहीं कर सकते इतने चीखा दी आवाज आनी थाने च, इतने रोल पिटन की आवाज आनी है। क्यों नहीं मेरा ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? I think we'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to मस्तियां। एक गरीब किसान का बेटा इरादा करता है और मुल्क का सदर बन जाता है। जी ऐसा हो चुका है अमेरिका में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ गरीब किसान का बेटा तो पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता, बल्कि अंजुमन ताजरान का सदर भी नहीं बन सकता। हमारे यहाँ गरीब का बेटा सिर्फ झूमर पार्टी का सदर बन सकता है। एक मेहनतकश किसान के बेटे का अमेरिका का सदर बन जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर इससे भी बड़ी बात है कि मुश्किल फैसले करना और मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल का तयन करना। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन की और उनकी बेगम मैरी टोड लिंकन। वेलकम टू मस्तियां। ਭਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣਾ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰੂਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। बाकी अंदरून ही रहती थी। अच्छा मैंने सोचा था 2 तारीखी किरदार हैं, कुछ तारीख की बातें करेंगे। इनके आपकी जिंदगी में क्या असरात? ਤਰਖਾਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਨੇ ਸਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੀਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਦ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਿੰਕਨ शुरू हो गए। लेकिन आपसे पहले तो ये किसी और से मोहब्बत करते थे ना, तो आपका दिल नहीं टूटा था? नहीं मैंने पता लगा सी, मैं क्या चलो हो सकती इंसान को गलती हो जाती है, बंदा पत्थर चट के मुरी आंदा है कि शायद मेरे नाल दी जिंदगी सेट हो जाए, मगर इन्होंने अपनी आदत नहीं छड्डी है। नहीं मैं तो बाजी सुने सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ईमानदार रहे ने। मैरी आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम बिकॉज ये इतने ऑनेस्ट थे कि इनको ऑनेस्ट एब का नाम दिया गया था। ही वाज वेरी ऑनेस्ट इवन कि इनके दुश्मन भी बंदे दी खातर इलेक्शन लड़िया गया जो मैनू पूछो मैं तन टांगे दे उते लेवी वाला पीपा रख के दे पूरे अमेरिका च पोस्टर लाए गए। और चुप कर जाओ, क्या तुमने मेरा साथ दिया जब मैं इलेक्शन लड़ने खड़ा होता था? हार जाया करता था। एक दफा 4 आइन में घर बनाकर लाया, इसने फाड़ दिए। तेन पहले दसना चाहिए इसने आइन है तू मैंने कहना मैं पेपर तैयार कर ले, मैं तेन तलाक देनी थी, मैं गुस्से से फाड़ देते। इस औरत ने जो मुंह से निकाला मैंने दिया, जो मुंह से निकाला मैंने दिया, जो मुंह से निकाला मैंने दिया। अच्छा अब्राहम लिंकन साहब, मैंने एक बात करनी कि सिर्फ एक रिक्शा यूनियन का ऐसा इलेक्शन था जो आपने नहीं लड़ा, बाकी सारे इलेक्शन लड़े और माशाल्लाह सब में हारे हैं।
लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि उसने कौन सा पहले सुन इलेक्शन लो जीता। क्योंकि फिर इन्होंने अख लाउनी। अमेरिका का 16वां सदर बना वो। जी, और सबसे कामयाब और सबसे याद रखने वाला कि इसकी वजह से अमेरिका 2 लख्त नहीं हुआ। अमेरिका को शुक्र अदा करना चाहिए मेरा कि मैंने उसे एक नाम दिया। अब्राहम, ऐसे घरेलू हालात के होते हुए भी आप सदर कैसे बन गए थे? दिस इज रिमार्केबल आई गेस। मैं सजने नु हौसला दिता है। अच्छा, मैं किसी हिम्मत नहीं आंदी। मैंने तो समझा था आप थी जिन्होंने हौसला तोड़ा हर बार उनका। नहीं, मैं इतने दी हिम्मत बनांदी रही हां। अच्छा, तां जाके किधर सदर बने ने, वरना ते इन्ने मनूस सन जेड़ा इलेक्शन लड़े ने हारे ने। बेसिकली ये इलेक्शन इसलिए देते थे क्योंकि ये एंटी स्लेवरी के खिलाफ बात किया करते। और उस वक्त एक बुक आई थी अंकल टॉम्स कैबिन, जिसने के कहते हैं ना कि अमेरिका की किस्मत ही बदल दी थी, और वो भी इन्होंने सैंक्शन की थी। सबसे बड़ा अजाब दुनिया में गुलामी है। बिल्कुल, गुलामी से बढ़कर कोई अजाब नहीं। और मैंने अपने लोगों को आजाद करवाया। ये तो शुक्र करे ये औरत कि इस पर मेरी नजर पड़ गई, सड़ती रहती वहां पे। हाँ बिल्कुल। लिंकन की 1863 में इनकी मुसलसल कोशिशों की वजह से सिविल वॉर में जितने भी कैदी थे वो आज़ाद हुए थे, कैदियों को आज़ादी मिली थी। एंड आई थिंक स्लेवरी के अगेंस्ट जितना काम अब्राहम लिंकन ने किया था उसके लिए हमेशा हमेशा ह्यूमैनिटी जो है वो इनके इंडेट रहेगी। वीना दोगले गए क्यों? बाकी गुलामी तो आजाद करांदे रहे, मैनू सख्ती कहंदी तू अगर व्हाइट हाउस तो बाहर पैर पाया ना तो मैं तेरे गिट्टे छील देने नहीं। ये दोगले पे ना मुझे एक बात याद आई। अब्राहम लिंकन का एक बड़ा अच्छा कोट है कि वो कहता है कि मेरे जो राइवल थे ना इलेक्शन में, वो कहते थे कि ये 2 मुंह वाला इंसान है, यानी दोगला है। अच्छा, तो वो आगे से उसने बड़ा सिंपल जवाब दिया। उसने कहा कि अगर मेरे पास 2 मुंह होते तो मैं इस मुंह से फिरता। वाह। बेसिकली अब्राहम लिंकन जो था ना बड़ा अच्छा रेसलर था, और 6 फुट 4 इंच तो इसका कद था। और अच्छा, ਉਹਦਾ 6 फुट 4 इंच ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2.5 फुट तक कितों पढ़ लिया जी? मैं पाकिस्तानी हूं ना, इसलिए। अब्राहम लिंकन का एक कोट है, मुझे बहुत पसंद है। नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। लो मैं अमेरिका च रही मैनू इंग्लिश नहीं आती जिन्नी उन्हें आती। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि व्हाइट हाउस में आप कहते थे कि उस वक्त जिन शिन रहते थे। मैंने नोट किया था, ये बात मेरे इल्म में थी, क्योंकि जब मैं रात पानी पीने जाता था 3 बजे तो लगता था कि कोई कदम मेरा पीछा कर रहे हैं। नहीं तो तुसी घड़ा कोल ही रख लेना सी कि पानी पी जाते। मैरी, जब आपको पता चला कि आपके हस्बैंड ये गुलामी वाला निजाम खत्म करने जा रहे हैं तो आपको कैसा लगा था? देखो इन्हें लोगों का गुलामी का निजाम खत्म किया है, मैं खुद इन्हें दी गुलामी सारी जिंदगी कड़ी। प्यारे प्यारे शौक सन रूबीए दे आए ड्रामे वेखदा सी अगली लाइन च बैठ के। अरगस कुरी हुंदी सी, हाँ हाँ, ओदा दीवाना हुंदा सी। अगे जाके मैं बड़ा मना कीता, मैं कहा मुड़ जा, ओ मुर्गी हुन तू ही मुड़ जा। लेकिन जांदा रहा, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ। गोली लगी क्यों? ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ। मैं तो हंसता हूं। अल्लाह को डरना चाहिए, किसी टाइम ढारी भी गैरत खा सकते। अच्छा लिंकन, अगर आप सिविल वॉर हार जाते तो फिर क्या होता? मैं हारता ही नहीं। मैंने अपना प्लान ही इतना खतरनाक बनाया था कि जिसमें नाकाम होने की गुंजाइश बिल्कुल निश्चित थी। इरादों के बड़े पक्के थे, बहुत पक्का। मैं कहता हूँ सीमेंट कुछ नहीं बेचता मेरे आगे। वाह, ये इरादे मजबूत। राजा ने तो बड़ा पक्का है। अच्छा, बीच में आपका ब्रेकअप भी तो हो गया था ना, लड़ाई भी तो हुई थी। वो छोटी सी बात हो गई थी, वरना नहीं होता। वरना नहीं नहीं, वो तो सुना आपकी जिंदगी में कोई और भी आ गई थी। आपको क्या पता रूबी, लड़कियों ने मेरे पीछे ब्लेड मारे हुए हैं। जब इसके बाप से मैंने इसका हाथ मांगा, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। मैंने कहा लड़की मुझे 2 जोड़ों में कबूल है। माशाल्लाह, जिड्डा बाजी होंदा कादे 16 गज ते सूट ही बनदा होना उन्हां दा। लेकिन इसका बाप इतनी दौलत होने के बावजूद इतना लालची, मुझसे डिमांड्स करने लग गया। लेकिन मैंने भी एक लीडर की तरह वो सारी डिमांड्स पूरी की। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਇਹਦੀ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ, बिल्ली से याद आया, बिल्लियां बहुत पसंद थी आपको। मैं तो मशहूर सब पूरे अमेरिका च माई बिल्लियां वाली। कितनी बिल्लियां थी आपके पास? मैं तो व्हाइट हाउस में निस्से बिल्लियां होंदियां सन। व्हाइट हाउस को सजाती भी थी आप? म्याऊं दी आवाज़ां आंदियां सन, इतना मजा हुंदा सी। उदों ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ना। हाँ हाँ, मैं तो घर होता ही नहीं था ना। मैं तो फजूल था, पागल था। काम तो इसका चाचा कर रहा था ना। वीना जी, इन्होंने कितनी देर हुकूमत की थी? 1861 को ये सदर बने थे अमेरिका के, और 1865 में उनका कत्ल हो गया। तकरीबन 5 साल। और इनमें और एक और कामयाब सदर हैं JFK, जॉन एफ कैनेडी। बड़ी कदर मुश्तरक है। 100 साल बाद उन्हें भी सर में गोली मारी। और दूसरी मुमासलत सबसे बड़ी कि जुमे वाला दिन था और इन्हें मारा था जॉन वेक्स बूथ ने, और वो था ली हार्वे ऑसवर्ल्ड। यानी 3 नाम उसके थे, 3 इसके थे। वो भी सदरन से था, वो ये भी सदरन से था। अच्छा मैरी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि आपकी पिटाई के प्रॉप्स क्या क्या होते थे? देखो मैं चाह रही हूँ कि
ਜਿਹੜੀਆਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਖਾਮਦ ਲਿੰਕਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਐਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਫਰਾਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਓਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਐਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਥਿੱਬੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, वो नहीं बता रही ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। अरे क्या नहीं किया इस औरत के लिए मैंने। औरत की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਔਰਤ। ठीक है मेरी जान की दुश्मन, क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ। अच्छा वीना, एक बात की समझ नहीं आती। ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ ਤੂੰ। अच्छा मुझे एक दफा फिर एक बात की समझ नहीं आती कि काफी ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बीवियों से मारे ही बहुत खाई। और क्या, वो क्या वजह क्या जॉन है? एफ कैनेडी, बिल क्लिंटन, ट्रम्प, ओबामा, नेम इट। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਸਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਰ ਹੋਏਗਾ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। हाय 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 हाय। ਬਾਜੀ ਲੱਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਧੋਇਆ ਕਰ। हाँ, मैंने सुना है कि आपके सर में भी दर्द रहता था, मूड स्विंग्स होती थी आपको, वो इसकी वजह से थी। ये तो बेचारा बोलता ही नहीं ਆ है। ਯਾਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਤੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪੁਰਪਰੀ ਪਾਰ ਜਾਈ, ਇਤਨੀ ਦਰਦ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫਿਰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं, मैंने तो सुना है कि लिंकन को क्रैकर्स पसंद थे, फ्रूट्स पसंद थे। ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖਵਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਕਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਦੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਖਰਾਟੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖਰਾਟੇ ਨਹੀਂ ਜੁਡੋ ਖਰਾਟੇ ਖੇਡਣ ਦੇ। एहसान नहीं किया तुमने, तुम मेरी ज़ौजा थी, मेरी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज था। और ये खिदमत ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਯਮਨ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अगर खराटे मारते थे तो आप इनकी नाक पे चुटकी लगा देती। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਤੂਨੇ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਾਣੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, फिर ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੜਾਣੇ ਤਾਲਾ ਰੱਖੋ, ਖਰਾਟੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰਾਟੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। अच्छा लिंकन, मुझे ये बताएं कि ईमानदार होने के फायदे तो होते हैं, मगर उसके नुकसान बहुत होते हैं। आपने क्या क्या नुकसान उठाए? ईमानदारी मैंने खुद चूज की है वीना। ਹਾਏ ਹਾਏ। ईमानदारी ना चूज करता तो शायद मैं बददियानत होता और मैं आज तारीख में बहुत ही बुरे इंसान के नाम से जाना जाता। और हाँ, सच्चाई, इंसाफ और मुंसिफी की कीमत चुकानी पड़ती है। ਯਾਰੋ ਬਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਦਾ? ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। चूड़ियां। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੇਚੇ। ਹਾਏ ਪਜਾਂਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋਨੇ ਦਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। नहीं तो तुम्हारा क्या ख्याल बेगम, इलेक्शन ऐसे ही फ्री में हो जाते हैं क्या? ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। हाँ जी। मुझे लगता है कि आपके घर में सबसे बड़ी लड़ाई तब हुई होगी जब मैरी टोड, इनके खानदान में तो बहुत सारे गुलाम थे और आप गुलामी खत्म करना चाहते ਅੱਛਾ थे। ਇਹ ਵੇਖ ਕੈਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤ ਲਈ ਜਾਣ ਡਈ। नहीं, मैं थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हूँ, मैं जानना चाहती हूँ नहीं, क्या हुआ वो था। बड़ा अच्छा सवाल कर रही हैं। अगर ये सवाल ना करें तो आपको पता ही ना चले कि आज जो आज़ाद अमेरिका की बात करते हैं वो इसकी मरहून मिन्नत है। ਇਹ ਵੇਖ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ। जब मेरी आप शादी का वाकया सुना रही थी, भाई शादी के क्या वाकयात अच्छा पूछते मैंने हो? उनसे पूछा है कुछ छोड़ा ही नहीं। बताओ मैंने क्या किया तुमने शादी ਮੈਨੂੰ करके? ਦੱਸਣ ਦਿਓ। अच्छा, आपके पास ना गलत रिसर्च आ गई है कि लिंकन कम गो थे। जो रियल वाले लिंकन थे ना, वो ये नहीं है। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਰਾਬਾਂ ਤੇ ਬੂਟ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਲਿੰਕਨ ਹੈ। लेकिन गेटअप बहुत अच्छा किया। हाँ ਜਿੱਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਵੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਇਹ ਡਾ ਕਮੀਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡੱਬਾ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਕਾਈ,
हाँ रस्म होंदी ना जुत्ती लगाई साडे भी उधर होंदी है अच्छा इतना कमीना निकलिया सवेरे उठ के वेख्या ते मेरे बाई दी जुत्ती पा के निकल गया $4 दिए थे, $4। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਜੀ ਮੈਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਈ ਏ ਤੇ ਕੋਈ 7.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨੱਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ इतना चला के इधरों मैंने हक बैठ देता है 5 मिनट बाद मेरे नाल ताश खेड़ा तो मेरे को जीत गया। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका जो मिडिल नेम है टोड, मैरी टोड लिंकन, ये किसने रखा था? यानी टोड जेड़ा मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है गए टोड बटोड दा अब्बू सी ना जी। आपको पता है टोड का मतलब क्या होता है? टोड साडी जात ही है। ये अपने गांव के बहुत बड़े मेंढक हैं। अरे ये मैं को एक दुख चले जिद्दन शादी जरिए बिद लेके आई बिद $1.5 की विद लेके पूरा रेरा भर के बड़े मनक्के खुश्क छुहाड़े कौरे बादाम जेरे जेरे बंदे ने बादाम मूंह च पाया थुकदा ही फिरे है केड़ी विद लै तू ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਮੂੰਗਰੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਵੀਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹੋਣੇ वीना तुमने मेरी खुराक नहीं सुनी। पिस्ते, अखरोट, चिलगोजे, 4 मगज, ये सब खाने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं अपनी कौम बना रहा था। सारी जिंदगी ने कौम बनाने ते लाती जान बनाई ही नहीं। अगर जान बनाई होंदी तो जो गोली वजी हल्का जाने हो सकता सी। बेगम काश मेरी आंखें पीछे होती तो मैं यूं हो जाता। अच्छा बंदे नु तो मार पैन रही होगी ना, थले उर्दू नहीं छड़ता भाई, कब से कह रहा हूँ ना मारो, क्या पता नहीं क्या कर रहे हो यार। देखो ये थोड़े से चोट आती है यार, ये क्यों होता है यार, ये देखो ये क्या हो गया है। I think we'll take a short break here. Stay tuned. मस्तियां में एक मर्तबा फिर खुशामदीद जी। आज की खबर है कि 5 स्टार होटल में क्याम के बाद बिल अदा किए बगैर फरार होने वाला शख्स बिलाहिर गिरफ्तार कर लिया गया। ओए होए होए, बड़ा ही कारीगर आदमी था कोई। अभी देखो ऐसा भी होता हाँ है, जी। एक 65 साल शख्स इंडिया में अरेस्ट हुआ है जी, और जिस भी होटल में चेक इन करता था, महंगे महंगे होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में बिल दिए बगैर भाग जाता था। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जब निकाला गया तो पता चला कि होटल में जब उसने चेक इन किया तो होटल वालों ने जब उसकी शान और शौकत देखी और उसका रोबो दबदबा देखा तो कोई एडवांस पैसे नहीं लिए उससे कि कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, और उसने कहा कि जी मैं जा रहा हूँ अभी होटल से और 100 लोगों की ज़ियाफत का बंदोबस्त कर मैं वापस आ रहा हूँ। और उसके बाद रफू चक्कर हो गया तो ही वाज अरेस्टेड लेटर ऑन। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। ये बड़े बड़े लोग लुटेरे ने जी, बड़े बड़े मुख्तलिफ अंदाजा से लुटते ने। बहरूपियों से और नौसरबाजों से तो तारीख भरी पड़ी है, हमारे आजकल के दौर में भी पाए जाते हैं। अमेरिका में एक बंदा था, वो क्या करता था, इसी तरह रहता था, यानी 4-5 दिन उसने स्टे किया, उसके बाद ना वो कमरे में चूहे छोड़ दिया करता था। अच्छा। और बाद में उनको इतला करता था कि देखें जी आपके चूहे हैं यहाँ पे, इसने मेरी फलां चीज़ खराब कर दी, फलां चीज़ खराब कर दी, अब मैंने पैसे नहीं देने। तो आखिरकार CCTV ने पकड़ लिया उसको। तारीख तो खैर से किरदारों से भरी हुई। नटवर लाल कितनी सारी बिल्डिंग्स उसने बेच दी थी इंडिया की। हाँ जी। ताजमहल को मल्टीपल टाइम्स बेच दिया था उसने। कहते 3 दफा बेचा था। सत श्री अकाल जी, मैं बलबीर सिंह बीरी जी। ये मेरे होटल का जिहड़ा ना ये घटना घटी है। मैं बड़े बड़े कलाकार देखे हैं लेकिन इन्हां वर्गा कलाकार मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखे। अच्छा, आप होटल के मालिक हैं? नहीं जी, मैं उत्थे दा मैनेजर हाँ। अच्छा। मैं मुख्तलिफ मुल्कां च ਰਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਰਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਬੇਲਚੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਡ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। तो आप पंजाब से हैं? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ। कौन से शहर से? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੀਰੀ ਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬੀਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੋਟਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ कलाकार उत्थे आंदे आ, लेकिन मैं कहना मैं मन गया इन्हां भाई होरां नूं जिन्हां ने कौड़ी दवाई पीती है। ऐसा कलाकार नहीं देखा होगा। हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक हो जी? और सुनाओ, सब खैरियत? अच्छा, आपको पता है ये किनको कॉपी कर रहा है? हमारी फिल्म और टीवी के लेजेंडरी एक्टर अली एजाज साहब। कॉमेडी, सीरियस, किस तरह का कैरेक्टर जो उन्होंने नहीं किया था। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਆ। मैं बड़ा फैन ਉਹਨਾਂ ਦਾ, मैं साला साहब बड़ी बारी ਵੇਖੀ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਦੋਸਤ। ਜਰਾਨਾ ਭਾ ਲਿਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसीलिए तो एडवांस नहीं लिया ना आपने। ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਘੜੀ। अच्छा। 2 ਘੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਘੜੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੋਂ नहीं नहीं, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੋਂ। ना ना, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਖਾ ਮੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਝੱਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਚ ਨਾ ਦੇਖਣ,
हाँ जी मैं बिल्कुल ही दिल दावा जा होंदा गया। आपको समझ नहीं आई उस वक्त कि ये आपको रिश्वत दे रहा है? रिश्वत नहीं सी, मोहब्बत रात ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਸ਼ੱਕ। अच्छा ਮਾੜਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। मैं मड़ गई टली खड़काई है। नहीं, शक आपको कब पड़ा? जब इसने 100 लोगों की जियाफत का ऑर्डर दिया और खुद नहीं आया? मैं थोड़ा दसदा हाँ भी जद ने 100 बंदे का आर्डर दिता कि कल उन्होंने रोटी देनी है, रोटी तो असं 1.5 महीने तो नहीं देन डे। मैनू एवं शक जिहा पिया, मैं आखिया बिल नहीं दिंदा, ये पूरा 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 करके दे रहा है, ये गल की है? मैनू ना शक हो गया, फिर मैं कीता दास नूं फोन। अच्छा मैं कहा दास आ जा। एक्सक्यूज मी, ये पीछे कोई पिक्चर लगी हुई है क्या? ये पिक्चर नहीं जी, मैं भी मुतासरीन में से हूँ। इसने मेरे से 50% पैसे ले लिए और मुझे लंबे लंबे सब्ज बाग दिखाए। आपका भी होटल है? इन्हों तो बम्बई च होटल है जी। मैं तो वीना जी हैरान हूँ, ऐसे शख्स हमारे माशरे में जी कैसे रहे? हमारे लोग ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं? सादगी, उनके दिल में भी लालच होती है। ऐसे कर लेते हैं ऐसे। मैंने जी 5-6 दिन की इस बंदे की रैकी। अच्छा ये करता क्या? ठीक है, दास पढ़िया पहले होटल में 3-4 दिन साड़ी पा के फिर अच्छा अच्छा, इतने सालों में पहले भी किसी ने आपको लूटा है या ये पहला बंदा जिसने लूट लिया? हुंदा भी छोटियां मोटियां चोरियां कर लिया, कमीने जे आंदे ना भी उत्तों फड़िया गया बीना जी ते झूठा नहीं पैण डिया। नहीं कोई 65 कार्ड ने कट के मेरे अगे रखे। कोई कादे क्रेडिट कार्ड कहंदा जी ए मारो अपने पैसे कटो, जेड़ा कार्ड एंकर करके मारिए बिचों अंग्रेजी च गाला हां ये साले ओदे च है की जेड़ा कढन डए आ तुसी? अपनी अपनी किस्मत है। बाद जो कार्ड मारे पैसे निकले ने, बाद च जदों दालनी गली ते कहंदा चक ले लो, मैं कहा मैनू नहीं पता, कहंदा मेरी खाला भईदा रवान दा। हाय मेरे दिल च होर इज्जत वधी, मैं दुध पत्ती उदों मंगाई फौरी। अच्छा, मैं गुरदास साहब से पूछना चाहता हूँ कि इसको कितनी सजा होगी? इसको कम से कम ये फ्रॉड की जो है ना 35 साल तो होनी चाहिए मेरे पास। बस ये तो बहुत थोड़ी सजा है। मौत ही होगी ना, 35 साल कितने नहीं जीना। ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाकी कितने भी जराइम हैं उनकी सजाएं बहुत सख्त है। जैसे मर्डर है, किडनैपिंग है और बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिनकी बहुत सख्त सजाएं। लेकिन ये जो फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, करप्शन करते हैं, कुछ मुल्कों में तो इनकी बहुत सख्त सजाएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ इनकी सजाएं बहुत कम है। यहाँ पे साइबर क्राइम जो है वो काफी एक्टिव है, लेकिन ये है कि तादाद ही इतनी ज्यादा कि वो भी क्या करें बेचारे। अच्छा वीना जी, आपको कभी सबा का फोन आया? सबा, वो द फेमस इजी लोड वाली? नो नो नो, मैंने उसको सुना है कि वो आप लोगों की टीम के एक कैरेक्टर है मिर्जा साहब, उनको मैसेज आया था सबा का। अच्छा ये जाके लोड करा के आ गए थे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा 1-1 रुपया वापस चाहिए। यार तुम्हें प्रकाश मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा, बीरी को भी पैसे मिल जाएंगे। पुलिस वाले साहब, इसको लंबी सजा होनी चाहिए। बिठी गल सुनो, इन्होंने फर्क करा दियो, मैं तुहाडे नहीं निबड़ लांगा। उतो चाबी काउंटर ते दे के रोब ना कहा कि जब मेरा कमरा क्लीन कर दो, जो मैंने कल ही बिल दे देना। हाँ जी, ऐसे माफी नहीं बनती ना नहीं इस जी, तरह के बिल्कुल कैरेक्टर। फ्रॉडियों की भी बनती। और तुसी ये देखो टप च झग बना के विच लेटिया हुंदा सी। हाय हाय दा जहर मैनूं लगदा ना, लेकिन मैं कहना सोहणे लगदे। पीरी भाई मेरी गल सुनो, तुसी फिल्मां वेखदे हो? मैं किते टाइम लग जाए फिर माड़ी जी देख लीदी है। पाकिस्तानी फिल्मां भी कदी वेखियां? आ देखी दी क्यों नहीं, थोड़ी मौला जड़ी बड़ी धुम्मां पाईयां उन्हें ते थोड़ी को फिल्म बनी सी साडे उत्थे पिंड दी कुड़ी। हाय ए इकबाल ढिल्लू वाली? माड़ा माड़ा ना मान रहा है, इन्हां दा पैंदा है। ये हुई ते सी पिंड दी कुड़ी? नहीं नहीं, हाँ तारिक जावेद भी थे उसमें। आह तारिक जावेद साहब भी सीगे, अशरफ राही साहब भी सी। ਉਹ ਕੁੜੀ ਏ, ओए पिंड दी कुड़ी तुसी सी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ उन्होंने ब्रेक भी लेनी है अभी। ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। नहीं नहीं, आप बैठे हैं। अब मैं तो फैन ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और तो बैठ तो जाए ना। माड़ा जा खड़ा होके मैं सेल्फी लेनी सी नाल यार। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंडियन मूवी आपने ही की ना? जी, वो फर्स्ट पंजाबी फिल्म थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोलैबोरेशन हुई थी। ਸਾਲਗਿਰਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਓਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬਲੂਨ ਲਾਤੇ, अच्छा ਕਮਰਾ ਸਜਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਤੀ ਕੇਕ ਕਟਿਆ, ਰਾਤੀ ਉਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲੂਨ ਨਾ ਇਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਟਲੋਂ ਪਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਲੂਨ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ मैं फील कर रहा भी गरीब आदमी कितना रोटी कमाता है। फराडिया। जब मैंने इसको पहली दफा देखा मुझे शक हुआ, लेकिन जब दूसरी दफा में मिला मैंने क्या इस मुंह पे क्या शक करना, लेकिन मैं नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए यार, किसी भी सूरत में चाहिए। इसको मैं छोड़ दूंगा, तुझे उम्र कैद कर दूंगा मेरे भाई। यहाँ मिलेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियां ज्ञान।
वेल, अभी हमारे पास आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड मैटर्स अ लॉट टू अस। तो जानते हैं रुवीना से कि पहला कमेंट कहां से और किसने किया है। यस रुवीना। अच्छा रुवीना अज के दौर च सबिया बेगम वर्गे वाल बनाए पुरानियां सुल्तानी दी फिल्मां च इहो जिहियां विगां पाईयां हुंदियां सी उन्होंने। मनबस ईसा दा तुसीं गाना सुनिया नशियां ने साड़िया, ओहदे च इहो जिहियां पिछे एवें इंज करी। अच्छा रुवीना वर्गी कुड़ी ना वोटी तो बहुता रोन डई हुंदी। क्यों? मैं प्रैक्टिस कर रही हूं। यस रुवीना। फुरकान साहब हैं कराची से और उनका सवाल अजहर रंगीला से है कि आप शो में इतने मुरझाए हुए क्यों लगते हैं? नहीं जी, मैं खान बरादरान तो बड़े शौक से मोहब्बत से करता हूँ, मगर यह है कि बाकी शो में भी मैं खिला खिला रहता हूँ, मगर एक मेरी आदत है जब सारे फनकार अच्छा कर रहे हो तो मैं जबरदस्ती बोल के खराब नहीं करना चाहता। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੁਰਝਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗ ਕਿਸੇ ਮੁਰਝਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ वरना खुद तो बड़े जॉली पर्सन है। और ये जिंदगी च लुटे नहीं जा सकते। क्यों? हमेशा विग थले ते पैसे लगांदे ने। ਇਹ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ। वाल नहा के आ जाते ने, ये उत्थे सुते हुंदे ने। वैसे इनको बहुत आसानी होती होगी ना, कभी भी हेयर वॉश करके रख लो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਨਾਈ ਕੋ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਬੂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਗਿਆ ਕੋਈ। So what is the next comment that we have? इलियास साहिब का यूके से असद कैफी से सवाल है कि मुझे कोई अच्छी सी मूवी रेकमेंड करें। मूवी को रेकमेंड करें मेरे भाई। देखें आजकल आपके टेस्ट का नहीं पता कि आप कॉमेडी के शौकीन हैं या ड्रामा देखते हैं, किस तरह की। अभी इस सवाल ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਲਿਖਣੀ ਪੈਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੈਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਡਈ ਅੱਗੇ ਵੇਖ। और नेक्स्ट कमेंट क्या है? मिस जारा लाहौर से हैं और उनका रूबी अनम से सवाल है कि आप किस एक्ट्रेस को कॉपी करती हैं? मैं किसी को कॉपी नहीं करती। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੀਓ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੂਬੀ ਵੈਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਅਦਾਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸਾਵਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰ थे सावन साहब। आ जवान ते हौला। मैं समझता हूँ कि रूबी आपा को बॉलीवुड में एक ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਮਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा रूबी अनम को कि मैंने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस देखी है दिव्या दत्ता। मुझे लगता है कि वो इनको कॉपी कर। वाह, आए अल्लाह, वो बहुत बड़ी फनकार है। और नेक्स्ट कमेंट क्या है प्लीज? मिस्टर उस्मान का अबू बकर से सवाल है कि आपको ये सारे आर्टिस्ट प्रोग्राम में बात क्यों नहीं करने देते? यार अभी तो सारी बातें हुई हैं। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ USB 'ਚ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ये ना ऐसे बात मशहूर है कि सबसे ज्यादा यही बोलते हैं। ਹਾਂਜੀ मैंने देखे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और जहाँ तक आपकी बात है तो हम आपको बता दें कि हम जितनी भी बातें करते हैं उसमें मोस्टली बातें जो है ना हमें अबू बकर भाई ही बताते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये मुझे रोकते हैं, क्योंकि जब रोकते हैं तो मेरी भी बेख्तियार हंसी निकल जाती है। तो इसलिए आप लोग इसको डाइजेस्ट करें। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਕਲੀ। जफरी साहब 5 लाख से आजकल बनता क्या? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ। ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर राकेश का सरदार कमाल से सवाल है कि चुनी बाबू के रोल के दौरान दूध की बोतल की बजाय फीडर रखते तो ज्यादा अच्छा लगता। ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮੱਝ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਚਟਿਆਈ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕੈਮ ਸੀ। अदरवाइज कोई दुध शुद्ध नहीं सकता। अच्छा मैं भी इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। And extraordinary sense of humor. I'm a huge fan and we are so proud that he's part of our ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕੁੜੀਏ ਪਜੇਬਾਂ ਵਾਲੀ। ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈ, ਥਾਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਲਾਈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਝੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੀ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾ ਕੇ।
निकुड़िए बजे बवालिए। गाने की बात हो रही है तो फिर असली वाला गाना सुने। मतलब है कि ये नकली गाना था? अरे भाई ये तो फिल्म का गाना था और सना के साथ। बिल्कुल फिल्म का गाना था, लेकिन अभी तो नहीं गाया जा रहा ना, हम आपको अभी सुनवाते हैं। अच्छा बीना जी, कभी अपनी भी आवाज चेक करवाएं हमें, आप भी गाना गा लेती है? गाना गा तो लेंदे, सुनने वाला कोई नहीं हुंदा। और इसके साथ ही आज की मस्तियों का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।